اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے دیا گیا ہے۔ یروشلم پوسٹ نے اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی ہے۔ یروشلم پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے انتخابات میں کامیابی پاک اسرائیل تعلقات کا اثر جائزہ لینے کا موقع ہے۔ اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا، جبکہ اسرائیل سے تعلقات میں بانی پی ٹی آئی کا کردار کلیدی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی عوامی رائے اور فوجی پالیسی تبدیل کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ مرتضیٰ سلنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ کہیے گا یہ جو دعویٰ کیا گیا اور اسرائیلی اخبار کی جانب سے ایک پوسٹ آرٹیکل آیا ہے بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ شکریہ جی۔ یہ جو مضمون چھپا ہے 15 ستمبر کو، جب جو ابراہم ایگریمنٹ کچھ عرب ریاستوں کا ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ، اس کے 4 سال مکمل ہونے پر سامنے آیا ہے، جو کہ صدر ٹرمپ جس میں انہوں نے ایک مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ تو موقع تو یہ تھا، لیکن اس حوالے سے اس مضمون کے جو مصنف ہیں ہیری رچرڈ، یہ صاحب ہیں تو برطانوی، لیکن مشہور ہیں اسرائیل کے حامیوں کے طور پر، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری نہ صرف مضامین لکھے ہیں بلکہ جو برطانوی ارکان پارلیمان ہیں ان کی بھی ایک مشاورت کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی عام معمولی شخص نہیں ہے۔ ایک تو ان کی ایک شہرت ہے اسرائیل نواز، اور ساتھ ہی ایک انفلوئنشل ایک ایڈوائزر ہے۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ اچانک سامنے نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے ٹائمز آف اسرائیل میں ایک تفصیلی مضمون آیا تھا، اور متعدد کوئی 100 کے قریب تو میرے علم میں ہیں جو کہ مغربی میڈیا میں خان صاحب کی حمایت میں اور ان کے رہائی کے لیے کہ وہ کتنے اہم ہے وہ کیا جائے۔ تو اب یہ جو آرٹیکل ہے یہ بظاہر آپ کو لگے کہ جی وہ خان صاحب تو اسلامی امہ کے لیڈر ہیں، وہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں اور تسبیح بھی آپ میں پکڑتے ہیں، لیکن اسی مضمون کے اندر تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طریقے سے ان کے دور میں بظاہر وہ فلسطین کے حق میں بولتے تھے، لیکن انہوں نے ایک عملیت پسند خارجہ پالیسی پر زور دیا، اور انہی کے دور میں ان کے جو بہت قریبی ہیں زلفی بخاری 2020 میں وہ برطانوی پاسپورٹ پر اسرائیل گئے، اور انہوں نے اسرائیلی جو انٹیلیجنس ہے موساد اس کے سربراہ سے ملاقات کی۔ اسی طرح سے ان کے جو سابق خاندان جو ہے، ان کی سابقہ بیوی بچے، ان کے جو سابق جو بردر ان لا ہیں زیک گولڈ سمتھ، یہ سب چیزیں لوگوں کے علم میں ہیں کہ بظاہر وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن جب چناؤ کرنا ہو زیک گولڈ سمتھ اور صادق خان میں، تو وہ اور ان کے بچے اور بیوی سابقہ بیوی وہ جا کر کیمپین کرتے ہیں زیک گولڈ سمتھ کے لیے۔ تو یہ جو بظاہر ایک منافقانہ جو کردار ہے وہ تو ہے، لیکن اس مضمون میں کافی اہم باتیں لکھی گئی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں ایک مقبول لیڈر چاہیے جو کہ فوج پہ بھی دباؤ ڈالے، کیونکہ فوج جو ہے وہ مخالف ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی۔ اب یہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو کہانی یہاں خان صاحب کے حمایتی دیتے رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جنرل باجوہ ان کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ تو حقائق جو ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ بات کہ کس طریقے سے ایک سے بڑھ کر ایک جو اسرائیل نواز جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، خاص طور پر اسرائیل کے، وہ خان صاحب کی حمایت میں یہ کمپین چلا رہے ہیں، اور وہ اس مضمون میں بھی لکھا ہے کہ ٹرمپ اگر دوبارہ آ جائیں گے تو وہ ان کے آنے سے اور خود عمران خان جو ہے یہ مل کے کسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ یہ جو ابراہم ایگریمنٹ جو اس وقت مشکل میں ہے غزہ پر حملوں اور لبنان پہ چڑھائی سے، ہم اس کو دوبارہ پٹڑی پر چڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن مرتضیٰ صاحب اگر یہاں پر ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کے لیے پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا، یہ بھی کہا گیا ہے، تو وہ کون ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ تبدیل کر سکیں یا ہماری قیادت کے اندر انٹرفیئرنس ہو ان کی؟
देखें, वो तो सारी दुनिया में मुदाखलत करते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक उनकी ख्वाहिश होती है कि कौन आए और कौन जाए, तो उनके कौन से लाडले हैं वो इस मजमून से आपके सामने आ गए। ठीक है, लेकिन अब जो सूरत हाल ये है कि जिस तरह से ये अब आर्टिकल्स भी सामने आ रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि हम इंटरनेशनली अगर हम इस चीज़ को रिकॉर्ड भी कराएं, अपना जो एहतजाज है उसको रजिस्टर करवाएं? देखिए, एहतजाज से तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की जो 76 साला ख़ारजा पॉलिसी है, जो पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हुई थी। आप याद करें कि 1940 की जो लाहौर करारदाद है, उसमें एक करारदाद फ़लस्तीन के हक में भी थी। आप ये याद करें कि जिन्ना साहब को अप्रोच किया गया था इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए, जो उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। मुसलसल पाकिस्तान ने उन चंद मुमालिक में पाकिस्तान शामिल है जिन्होंने न सिर्फ इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए, बल्कि आज तक इस मौक़िफ़ पर कायम है। पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि फ़लस्तीन को तकसीम नहीं होना चाहिए, और जब इसराइल बन गया उसके बाद पाकिस्तान की हमेशा पोजीशन ये रही है कि 1967 से पहले के जो बॉर्डर थे उस पर आप वापस जाएं और फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम हो और मशरक़ी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत हो। तो पाकिस्तान के लिए यही अहम होगा कि वो अमलन किस तरीके से सिफारती और अखलाकी मदद करे फ़लस्तीनियों की। यही एक मिसाल है, बाकी और कुछ एहतजाज से फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने दौरे हुकूमत में बानी पीटीआई ने पैलेस्टीनियंस का बहुत साथ दिया, बड़े फोरम्स पर बात भी की, फिर भी उनको फेवरेट इजराइल की जानिब से कहना, ये कैसा देखते हैं आप? देखिए, बयानात तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन सिर्फ बयानात से कुछ नहीं होता। आप अमलन क्या कर रहे होते हैं वो काउंट करता है। मैंने आपको मिसालें दी कि जुल्फी बुखारी की, जैक गोल्डस्मिथ की, आप जरा और पीछे जाएं, खान साहब पहली बार जब अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करने गए थे तो कौन लोग थे, किनके साथ तस्वीर आई थी? जेरेड कुशनर याद है आपको? जेरेड कुशनर जो इनके सन इन लॉ हैं ट्रंप साहब के, ये वो साहब हैं जो कि न सिर्फ यहूदी हैं बल्कि वो सहूलियत पसंद हैं, इसराइल नवाज है, और उनके साथ खड़े थे जुल्फी बुखारी। तो असल जो बात है वो ये है कि पस पर्दा आप क्या करते हैं, असल में आपकी सियासत क्या है। लेकिन अगर अब ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है, पाकिस्तान को अपनी सालमियत को बरकरार रखने के लिए और अपनी जो चीज़ें उनको स्मूथ तरीके से ही चलता रहे, तो क्या करना होगा इस तनाजुर में? पाकिस्तान को अपने घर को ठीक करना होगा, अपनी मुआशी हालत को बेहतर करना होगा, मुआशी इस्लाहात करनी होंगी, अपने जमहूरी इदारों को मजबूत करना होगा, अदालती इस्लाहात करने होंगे। यही एक तरीका है। जब आप अपने घर को मजबूत करेंगे तो उसके बाद तमाम चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ों को ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं ताल्लुकात की अगर बात करें और इमरान खान से बार बार ये जोड़ रहे हैं, अगर इस आर्टिकल की हम बात कर लें तो फिर इसमें सूरत हाल क्या बनती दिखाई दे रही है मज़ीद? क्योंकि बानी पीटीआई का नाम बारहा हम देख रहे हैं कि इसराइली अगर अखबार की बात करें या डिफरेंट आर्टिकल्स की बात कर लें तो उनमें आ रहा है। मेरे ख्याल में आपकी और मेरी सब लोगों की जिम्मेदारी यही है कि लोगों को आगाही दें कि जो चीज़ें जिस तरह से बज़ाहिर नज़र आती हैं दर हकीकत ऐसी नहीं होती, उनके पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लोगों की आगाही ही दर हकीकत एक हथियार है जिसमें आप किसी किस्म की जो चालें हैं उनको नाकाम बना सकते हैं। बिल्कुल, पस पर्दा तो बहुत सारी चीज़ें हैं सोलंकी साहब, लेकिन अगर हम आगाही की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को किस तरह से वेल इन्फॉर्म कर सकते हैं मौजूदा हालात को देखा जाए तो? मेरे ख्याल में आप और मैं जो इस वक्त कर रहे हैं यही करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब अपना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को देने के लिए। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के आर्टिकल में बानी पीटीआई को इजराइल का हमायती करार दे दिया गया, जबकि यरूशलेम पोस्ट ने इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक भी कर दी है। और यरूशलेम पोस्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई इजराइल के लिए
हम ख्याल सियासतदान हैं और बानी पीटीआई के इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का मौका है। इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा, ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, जबकि इसराइल से ताल्लुकात में बानी पीटीआई का किरदार कलीदी होगा और बानी पीटीआई अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में किरदार अदा कर सकते हैं। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसा इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाक इसराइल ताल्लुकात बहाली तेज कर सकती है। आपको बताएं कि इजरायली अखबार है यूरोशियन पोस्ट, उसके एक आर्टिकल में बानी पीटीआई को इसराइल का हमायती करार दिया गया है और इस आर्टिकल के अंदर इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक भी कर दी गई है। यूरोशियन पोस्ट में ये कहा गया है कि जो बानी पीटीआई हैं इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं, उन्हें फेवरेट कहा गया है और बानी पीटीआई के इंतखाबात में कामयाबी जो है वो पाक इसराइल ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का भी एक मौका है। इसके साथ साथ इसराइल के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ और मौजूदा सियासी क़यादत को लेके उन्होंने बात की है कि इसको बदलने की ज़रूरत है और इसराइल से ताल्लुकात में बानी पीटीआई के किरदार को उन्होंने कहा है कि ये बड़ा कलीदी साबित होगा और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई जो है वो अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि अगर फौजी इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि तवील अरसा इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका गया उनकी जानिब से, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की भी इसमें बात की गई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस जाते हैं तो फिर पाक इसराइल ताल्लुकात जो है उनकी बहाली में तेज़ी आ सकती है और ये चीज़ें जो है इसमें मेंशन की गई हैं आर्टिकल में। और ये इसराइल अखबार यूरोशियन पोस्ट का आर्टिकल है जिसमें ये तमाम चीज़ों को मेंशन किया गया और इसके साथ साथ बानी पीटीआई के जो ताल्लुकात है इसराइल के साथ वो उनको सराहा गया है और उन्होंने कहा है कि इसको उन्होंने फेवरेट अपना करार दिया है बानी पीटीआई को और उन्होंने कहा है कि ये इसराइल का हमायती है। उसके साथ साथ यूरोशियन पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की भी तस्दीक कर दी है।